कर दूंगी, डोंट वरी, कर दूंगी। ओके, इन व्हाट्सएप में अभी क्लास खत्म होते ही जो मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ ना, सारे पीपीटीज मैं आपको उसमें डाल दूंगी, ठीक है। सो नाउ इट इज क्लाउड आइडेंटिफिकेशन। ये देखो, ये हो गया सिरोस्ट्रेटस। ओके, सिरोस्ट्रेटस। देन वी आर गोइंग फॉर दिस ऑल्सो अनदर वे ऑफ सिरोस्ट्रेटस। सिरोक्यूमुलस का जो सिरोस्ट्रेटस के जो ये सिरोक्यूमुलस है, ये भी दूसरा फॉर्म, ये छोटा छोटा जैसे ही यू कैन सी स्मॉल स्मॉल cabbage or the kind of cotton balls, it will be always a cumulus cloud. Okay, then this is cirrostratus. Cirrostratus कैसा है? Generally it is stratiform type of cloud, and this stratiform type of cloud will be there for the annual of the CB. So this is generally will happen in the annual of the CB, and this will have supercooled liquid in its this one. So generally liquid, whenever it is negative temperature, zero temperature mein, the liquid solidifies and becomes ice crystals. But in nature we can find water in supercooled state in cirrus cloud. And so whatever nuclei that will come in contact with the supercooled liquid, it solidifies. So that is one of the aviation hazards also, which will be taught to you in the aviation classes. So this cirrostratus generally, which is there at the very high level, the high cloud will have supercooled liquid at minus 40 degrees. Okay, minus 40 degrees centigrade. So in that form, this particular cloud becomes supercooled and they start solidifying, and therefore this one particular cloud becomes ice crystal. It is actually becomes the annual. And the hailstorm, predominantly hailstorm ke liye during the pre-monsoon season, this cirrostratus clouds are very very responsible, because they have supercooled liquid, and the updraft and downdraft with multiple nuclei and the kind of small particles will be so high that during the updraft they take it up and then they solidify and they become hail. Okay, so then after this is also a form of cirrostratus. देखो, ये cirrostratus के दो और types of, when it is looking like a cirrostratus like this, you are supposed to report cirrostratus. Now what is altocumulus? Altocumulus clouds are very clear and distinct. They will look like this. It's a middle layer of the cloud or the medium layer cloud. Then this also looks like this. So this is the cloud pictures which I'm going to share it with you so that you can understand. Now you go for the CM जो है, which is in the code page number 12. See, page number 12 में you have to learn the cloud symbols. Okay, altostratus is greater part of the semi-transparent through with the. So why first is altostratus? It's a stratus cloud. Now this is a cumulus cloud here. This is the altostratus cloud. Generally this time the sun will be closed. I mean you will not be able to see the sun in a very clear way. You will see that sun is in a blurred manner. Why? Because a thick sheet of cloud. Generally during monsoons what we have is a altostratus. Yes? Ma'am, I think it is possible to close the Meet Google window, ma'am. Google window na. Acha, this one? Yes, ma'am. You are able to see now? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Now is this visible now? Okay, this is altostratus where it is thick cloud. Okay, this is a thick cloud. Then it sometimes it's also like this. See, when solar radiation is the sun in the afternoon also is not very clear, and the thick sheet of cloud which is generally a dominating feature of the monsoon time. And then here, see, this is one. It is generally this type of clouds we can see it in the winters, in the summers, and all the time. And this particular thing, suppose a CB is forming or the cumulus is there, and cumulus when it grows and it goes in contact with the altocumulus. So the towering cumulus and all, that time this altocumulus is always visible, and you can report altocumulus AC3. So when we say AC, it is the symbol will be 3. 4 is what? 4 is altocumulus and with some transparent form of the altostratus. ACAS4. What do we report? ACAS 4. Correct, na? ACAS4. Yes, ma'am. And when can we report 8? When do we report 8? Medium cloud 8.
Do we report medium cloud 8? Yes, ma'am. N. When do we report 8? मैम आई थिंक ड्यूरिंग वेट जब जो लेयर में हो तब. Actually, we generally report 3 or 4. 8 जो है altocumulus with sprouts and small towers and battlements and all, it doesn't really appear so well in Indian terrain. But yes, at the time when CB is there and some part of it is there, that time हम लोग 8 भी रिपोर्ट कर सकते हैं. बट हम लोग जब भी रिपोर्ट करते हैं ACAS4 देते हैं या altocumulus 3 देते हैं. But during pre-monsoon period, when there is a kind of CB and the total cloud का जब cover हो जाता है, तभी हम लोग 8 altocumulus with Ma'am, sprouts. when sun is not visible, we provide 8. We give 8 number clouds. That is what see 8 number, that is low cloud. When sun is not visible and all, वो जो है ACAS4 है ना. Hello, AS4 is when sun is not visible. देखो patches and all आ जाता है. Completely it is covered. Opaque वाला जो है 7 आता है ना. Altocumulus are 2 more types of layers and opaque places and not progressively invading. Opaque layer of altocumulus not progressively invading. Altocumulus are all together with orthostratus or nimbostratus. See, that time it is 7, right? Yes, ma'am. So it is not 8, it is 7. So monsoon period में altocumulus together with orthostratus or nimbostratus, it is 7. Yes. That is, it is not this one. So individual cloud में जब जाओगे तो तभी it will be C. C will be AC at AS, right? 3 and 4. 7 code is in bad weather, ma'am. 7 अभी देखो दो बातें. 7 code जो है वो है bad weather for low cloud. Yes, ma'am. This is a medium cloud. Now what we are understanding is a medium cloud. Medium cloud में कौन से जो है altocumulus and altostratus. Altocumulus का डेंसिटी कितना होगा, altostratus का डेंसिटी कितना होगा. तो तभी हम क्या देते हैं, जब थोड़ा सा इस तरह का पिक्चर है तो AC3 देते हैं. करेक्ट, AC3 देंगे. और ऐसा जब पिक्चर आएगा तो हम क्या देंगे, Alto straight. ACAS. हाँ ACAS, that is 4. ACAS4. ACAS4. ACAS4, ठीक है. और जब वो बैड वेदर में आ जाता है, along with the kind of CB is there, मतलब low level में CB is also there, that time we will say it's opaque and that is 7. मतलब just CB dissipate होने से पहले पूरा ऐसा dark हो जाता है ना, everything becomes dark. Yes, ma'am. That time we will give 7. मतलब CB form हो गया है और अभी बस बारिश होने वाली है and it is totally dark at the time of observation, it will be 7. Okay, it will not be otherwise. ठीक है, this is medium cloud. Then now let us come to the low clouds. ये क्या है, ये nimbostratus. Nimbostratus जो है इंडियन टेरेन में नहीं दिखता है, it's always extra tropical. But some people for this kind of, मतलब during the monsoon they also say it is nimbostratus. But हम लोग जो है ACAS देते हैं. इंडियन टेरेन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में we are giving ACAS4. Okay, and 7. Am I okay? Correct? नहीं, देखो ये ऐसा आता है पिक्चर. मतलब जब जस्ट बारिश होने से सीबी बोरा पूरा फॉर्म हो गया है, जस्ट बारिश होने से पहले सडनली इट बिकम्स वेरी डार्क. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाटर. तो उसका रिफ्लेक्टिविटी की वजह से. सो ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. किया है कि नहीं किया है? यस मैम, किया है. किया Yes, है ना? Yes, ma'am. हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cloud, हाँ. CB cloud. हाँ, सीबी क्लाउड जस्ट डिसिपेट होने से पहले ऐसा होता है. ठीक है. देन इन दी लो क्लाउड, स्ट्रैटोक्यूमुलस. स्ट्रैटोक्यूमुलस आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ना. स्ट्रैटोक्यूमुलस में क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बॉल्स ऑफ रुई का जो बॉल जैसा होता है, वो उसमें स्प्रेड होता है एंड इट इज अ पैचेस, लाइक काफी जगहों पे रहता है एंड इट इज लाइक स्ट्रैटोक्यूमुलस. मतलब उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटिफाइड क्लाउड भी है और क्यूमुलस क्लाउड भी है, बट इट इज इट इज अ नॉन वाटर बेरिंग क्लाउड. इसकी वजह से बारिश वगैरह कुछ नहीं होता. ये फेयर वेदर क्लाउड भी होता है. ठीक है. सो दिस लुक्स समथिंग इन दिस पैटर्न. ओके, देन दिस इज व्हाट इज स्ट्रैटस. स्ट्रैटस इज अ बैड वेदर क्लाउड. दैट इज 7. नाउ लेट अस कम टू द सीएल फॉर्म. सीएल का फॉर्म जो है आपका है पेज नंबर 11. यहाँ पे हम कभी देंगे 2 and 3 क्यूमुलस.
क्यूमुलस मतलब छोटा छोटा पैचेस बन गया है, छोटे कैबेज, हाँ, एंड उसका कैबेज टाइप, कॉलीफ्लावर टाइप। कॉलीफ्लावर टाइप है, लेकिन उसका एजेस बहुत क्लियर नहीं है, तो वो क्यूमुलस क्लाउड होता है। ये देखिए, दिस इज द क्यूमुलस क्लाउड, ओके, इट इज एजेस आर नॉट वेरी शार्प, बट टावरिंग क्यूमुलस के लिए जाना है तो दिस आर ऑल क्यूमुलस क्लाउड्स, राइट। बट जब ये आ गया तो इसका मतलब है अभी आपका सीबी फॉर्म हो रहा है, तो इसको टीसीयू भी देते हैं इन द एविएशन, ओके, बिकॉज इसका एज जो है वो शार्प हो जाता है, ओके, एंड देन इसका जब एनुअल बन जाता है तो इट बिकम्स अ सीबी, कंप्लीटली क्यूमुलोनिम्बस, टीसीयू एंड सीबी। देखो ये वाला है, ये जो है एनुअल बन रहा है ना, देखो ये एनुअल है, राइट, Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. एनुअल है, तो ये सीबी के इसमें आ जाएगा। सो स्ट्रैटस इज अ बैड वेदर क्लाउड। जैसे ही सीबी बन गया और उसको जस्ट डिसिपेशन से पहले आपको ऐसा मूविंग क्लाउड दिखाई देगा, मतलब the cloud which actually you can see flowing from one place to another place, the wind can drag it and it has patches of water, तो ये generally drizzle and continuous rain का जो कारण होता है, इसको ये देते हैं। तभी हम क्या देंगे, 7, bad weather status is 7, ओके, और जब सीबी के साथ रहेगा तो कोड फिगर इज गोइंग टू बी 9, ठीक है ना। 9 is when all types of low clouds are there and CB is dominating, that time आपको 9 देना है, that okay। So this cloud picture का जो है मैं आपको अभी इसको शेयर कर दूंगी, क्लाउड आइडेंटिफिकेशन, एंड इसका थोड़ा ये भी है विथ ऑल एक्सप्लेनेशंस है। देखो इसके अंदर ना सारा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, तो ये भी मैं आपको आई विल गिव यू दी स्लाइड, डन, मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। टाइप्स ऑफ वेदर एंड दी क्लाउड्स, क्लाउड के साथ में कौन सा कन्वेक्टिव है, वार्म क्लाउड एंड कोल्ड क्लाउड, ये जो है आप लोग बाद में कोई, एक्चुअली दिस इज एफटीसी का टॉपिक, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लाउड। नाउ नेक्स्ट इज हियर वन मोर पे, सो वी हैव कवर्ड 8 NH Cl Cm CH, okay, small h is what, small h is going to be your height of the low cloud, okay। अभी again you come back to the code book में H, पेज नंबर 7, कोड नंबर 14, ट्रिपल H, HS, HS, ये सभी कुछ है 14, 15 and 16, कोड नंबर 14, 15 and 16, और कोड नंबर 14 is going to be the height H, इसमें क्या आता है 0 to 49 meters, 1 is this one, generally is this H is with respect to the station, for example if it is Pune के स्टेशन के हाइट से the low cloud will be given 5, okay, because इसका height of the station, but if the same thing is in Bangalore we will give it 4, why, station height is a bit higher than Pune, got it। so ये आपके स्टेशन में आपको देखना है कि आपका हर स्टेशन में कि कितना हाइट जो है लो क्लाउड का होता है, ओके, सो दैट इज हियर। देन मीडियम क्लाउड में क्या है, इट इज जनरली बिटवीन 1500, है ना, अबाउट 1000 to 15, दिस वन तो 6 or 7 देंगे, एंड व्हेन actually we all generally give for 8, that is 2000 to 2500, or 7, 1500 to 2000 meters is a medium cloud, right। मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो ठीक कर दो, am I correct or not correct? सभी लोग सो गए खाना वाना खा के? मैम मीडियम क्लाउड वगैरह की हाइट वगैरह तो स्टेशन पे डिपेंड करती है ना, हाँ, कि जैसे वही- आपके वहाँ 7 दे रहे हो, हमारे 8 दे रहे हैं। भाई वही तो मैं कह रही हूँ, 7 और 8 के बीच में ही देते हैं, करेक्ट ना। ओके ओके, तो एम आई करेक्ट? अरे मैं सही हूँ तो सही बोलो, गलत हूँ तो Yes, गलत ma'am. बोलो, चलो ठीक है। एंड देन हाई क्लाउड इज अबाउट 9, ठीक है, ओनली हाई क्लाउड इज देयर, दैट टाइम यू विल गिव 9, विल गिव दिस एज 9, ओके, एंड एन भी दे देंगे उसमें। और यहाँ पे NH जो है ये नहीं रिपोर्ट, NH के लिए कुछ भी रिपोर्ट नहीं होता है, रिपोर्ट होता है नहीं होता है। यदि हाई क्लाउड है तब तो 000 ही होगा, ये तो हाई क्लाउड की वैल्यू ही होगी कि 2 ऑक्टा है तो 8002 होगा वैसे। हाँ वही 8002, Two. क्योंकि इसका टोटल ऑक्टा जो है n में दे ना, बिकॉज वाई हाँ। यहाँ पे 0002 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ n में आप 2 ऑक्टा 3 ऑक्टा N में और एक ही क्लाउड है, इसलिए हाँ। NH कुछ भी हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ओनली हाई क्लाउड इज देयर।
गॉट Yes, इट, sir. है ना? हेलो मैम। बोलिए बोलिए। मैम लो क्लाउड की हाइट के लिए हर एक स्टेशन पे बुक होती है क्या कोई कोड? नहीं, वहां पे उधर पे रेफरेंस पॉइंट लिखा रहता है ना कि भाई आपका जो हाइट है, अभी फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में जब थी तो लो क्लाउड हम लोग 4 देते थे, बट व्हेन आई हैव कम टू हाँ पूना मैम, वी गिव लो फोर ही लो देते क्लाउड हैं। 5। हाँ हमारे तो भावनगर में भी 4 ही देते हैं। हाँ, तो वो इट डिपेंड्स फ्रॉम द हाइट टू हाइट, ठीक है। बट बैंगलोर में हम लोग, यहाँ पूना में बिकॉज ऑफ द हाइट वी गिव इट 5, इसका जो लेवल डिफरेंस है उसकी वजह से। अब भावनगर जो है अगेन इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, इट मीन सी लेवल ना। यस सर। हाँ, तो फिर वहां पे, और दूसरा मीन सी लेवल होने के बाद में इट्स बीइंग ऑन द कोस्ट आल्सो, तो आपका जो क्लाउड हाइट है वो कम हो जाता है ना। तो it is always depends with reference to the station height, okay, but आपका 4 और 5 से ज्यादा नहीं जाएगा because it is 600 meters हाँ। to 900, तो उससे ज्यादा it cannot vary, okay, because Ma'am, 4 और certain 5 ही देते हैं हम। ST देते हैं तो 4 देते हैं, SC वगैरह देते हैं या CU देते हैं तो 5 देते हैं। 5 लेते हैं, तो because ST will be little lower, हाँ। ठीक है ना। मैम Yes, sir. कभी कभी जैसे एसटी क्लाउड होता है तो 3 भी देते हैं ना, वो जीरो डिपेंड रहेगा। करता है ना। देखो अभी देखो आपका अगर हिल स्टेशन होगा तो आपका क्लाउड तो और करीब में आ जाएगा ना। 3 का मतलब क्या, 200 to 300 मीटर्स के बीच में है। सपोज आपका कोई कोडाईकनाल, अभी कोडाईकनाल वाला कोई तो था इधर पे ना, उसने पूछा भाई yes, ma'am. कोडाईकनाल, Actually, हाँ we तो give the slash करेक्ट, स्लैश base क्यों देते हो? base of the Base of the cloud is lower than lower your than the station. station height. So because ST will pass through and through. This happens Yes, with all hill stations. और किसी ने मुझे पूछा था 48 क्यों देते हैं हम प्रेशर में? 48 is geopotential meter because उसका जो है when you read this physical meteorology you will understand that वहां पे geopotential meter क्या होता है? Height from the top of the atmosphere, करेक्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन सी लेवल के लिए तो आपका वो जो मर्क्यूरी वगैरह लगा दिया तो इट विल अक्यूम गेट द हाइट, but at a hill station that is not possible, so that is why it will be the height of the station is with respect to the top of the atmosphere. That time it has been recorded in geopotential meter, and there it will be recorded the station level pressure is given at 4.8. Correct, station A mean sea level pressure is given 4.8, and it will be depicted in the chart with red color ka wind barb. When the wind barbs are in red, that means it is a hill station. Got it? Yes, ma'am. ओके Okay. चलो अभी ये यहाँ तक का हो गया। Now let us go to the 222 section. What is 222? 222 is a section for only coastal stations. Coastal station में क्या होता है? Coastal station is static, standard. So PWA is what? Period of the wind wave. What is it? Period of the wind wave. ये है आपका period of the wind wave observed by instrument. Okay. Period of the wind wave observed by the instrument. PW is period of the wind wave in seconds, and it is actually a progressive one which is actually estimated. This is code number 13. Page number 7, code number 13. Okay. So the wave which is coming towards the station, that is PWA, is we will report only if it is being recorded by an instrument. Otherwise, this is not reported. PW, HW is period of the wind wave and height of the wind wave. And W1, W2 is what? Direction of the wave. Two waves can come. Matlab, see, if a station is, for example, located at a particular place, then there can be 2 directions or 3 directions. 3-dimensional आएगा क्या, 2 directions आएगा. So if ever it is coming whichever direction, दो swell waves के लिए DW1, DW2 are for swell waves. Swell waves come from a very far off distance and towards the station. That is why W1 is the direction of the wave. Wave 1, WT is the direction of the wave 2. This is the period of the wave 1 and height of the wave 1, period of the wave 2 and height of the wave 2. This is recorded by the coastal station, which is static and it doesn't go. For example, earlier we had Pamban, Visakhapatnam and also Karwar used to report. But these days, I don't think they are reporting. Even some people are from Visakhapatnam. They are supposed to see the wave and do it. But these days, I think they are just estimating it and reporting it. Are they reporting or no? I am not sure about it. कर रहे हो क्या?
मैम हमारा 4 से आता है मैम, 222/207001 देते हैं बस। 701 दे देते हो। हाँ 20701। मैम यहाँ कर्नाटक में तो कोई रिपोर्ट नहीं करता है, कारवार होगा कारवार किस नहीं, कारवार पहले करता था, अभी उसका ऑफिस बदल गया है, तब से उसने पहले इट वाज ऑन द कोस्ट, बट आफ्टरवर्ड्स अभी नहीं करते मैम कारवार। अभी कारवार नहीं करते बिकॉज द ऑफिस हैज शिफ्टेड। बट पाम्बन, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाम्बन। पाम्बन इज आल्सो a coastal station where पाम्बन में हुआ करता था। I don't know now what is the status. ठीक है, this is called as a coastal station. Now section 3, okay. In this section 3, we are having multiple things. This is more important for us. SN, TX, TX, TX. This is the maximum temperature which we have already spoken. SN, TN, TN, TN. That is मिनिमम टेम्परेचर। हमने SN का भी डेफिनेशन किया। 0 मीन्स पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव। करेक्ट? ओके। Yes. Now 56 and 57. What is 56? DL, DM, DH. 56 DL is direction of the low cloud, medium cloud and high cloud. Okay. In 8 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 single digit आता है। Okay. 5, 7 C, DA, EC. C is what? Cumulonimbus cloud, direction and elevation for CB. So C will be always 9. DA is what? Direction. Which direction it is there? And what is the elevation? Inclination by degree. In degrees. So when you are watching it from the horizontal Angle. so the angle that is subtended between your eye and the top of the cloud is what you are going to report here. Okay. Then मैडम अ डाउट मैडम। पूछिए। मैडम ये एंगल ऑफ एलिवेशन मैम क्या मतलब अपने से ही गैस करना पड़ेगा या फिर इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। सेक्शन 3 इधर पे, ये देखो, ये वाला, ये एस्टिमेशन है। इट इज एस्टिमेशन, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द एस्टिमेशन। ओके, सो दिस इज द साइट व्हिच यू आर सीइंग एंड दिस इज टॉप एंड व्हाट इज द डिग्री इट इज मेड। और इसी का जो आपको है एक्सप्लेनेशन इधर पे दिया गया है, कोड नंबर 10। गो टू कोड नंबर 10, पेज नंबर 16। If the top of the cloud is not visible, it is 0. If the top of the cloud is 45 degrees or more, it will be 1. If it's 30 degrees, 2, 3, 4. आपको दिख रहा है यहाँ पे? If the top of the cloud is less than 5 degrees, generally it is 9. At that time, we don't report. Generally, when we report, when the top of the cloud is more than 45, about 45 degrees. मतलब आपका 45 degrees का सबटेंड एंगल हो रहा है, मतलब the depth of the CB is very high. Correct? आपका जो डेप्थ ऑफ द सीबी बहुत ज्यादा होगा तभी वो 45 आता है। करेक्ट? यस। सो दैट इज व्हाई दिस इज द रिपोर्टिंग। सो दिस इज 56 DL, DM, DH एंड दिस इज गोइंग टू बी 57। ओके, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देयर इज एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर दिस वन। ये मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। नॉट ओनली द कोड एंड सी दिस इज द वे द रीजन इज डिवाइडेड। ओके, internationally, and that is why we are getting 4.2 and 4.3. 4.2 किस लिए आता है? The one above this is the Indian region. Above this particular latitude, 22 degrees, we get all the numbers are with 42. Below that, it is 43. Okay, so Indian subcontinent has two things. One is 42 and 43. See, this is the station code का आपको 20 degrees पे इसका line है, ठीक है ना? ये 42 ब्लॉक है, ये 43 ब्लॉक है। Okay, so इसका ये explanation जो है यहाँ पे और भी clearly दिया गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 इसमें गॉट इट? ये देखिए, तो इसमें पूरा दिया है, बट आई एम जस्ट गिविंग इट यू बिकॉज यू ऑल आर एक्चुअली वेरी वेल रेड पीपल। आई डोंट हैव टू टेल यू दैट, बट स्टिल मुझे जो भी था मैंने वो उसमें whatever I know and whatever I could explain, I have already done that. Okay, so this is the way it is been done. And now let us complete here 333 का ये सेक्शन में 333 में ये ना ये गलत दिया है। आई थिंक दिस 7 WW और W1 W2 ये नहीं आता है। मैं ये थोड़ा करेक्शन करके आपको दे देती हूँ बिकॉज ये 333 में 2 जगह गलती है। ये 7 का वेदर फिगर नहीं आता है और 8 जो है NS CHS HS। NS is the individual cloud का octa and where you will be following 135 rule. 113 मतलब if ever the quantity of the lowest cloud is 1 octa, then only it is reportable.
If the second layer, it has to be 3 octa, then only it is reportable. And it is the third layer, it has to be minimum 5 octa. So 1 octa, 3 octa, and 5 octa. But CB, if CB is present, then one extra layer will be there. CB, 1 octa, and the height will be what? And iska HSHS का height कहाँ दोगे तुम लोग? It is code number 16. Please go to code number 16. Code number 16. It is page number 20. Code number 16, page number 20. देखो 0, 1, 2, 3 मतलब 30 meters, 200 meters, 22. Okay, 25. So generally height of the CB will be 24 or 25, 750 meters. Okay. And 58. When you go for 58 and 59, it's 2400 or 2700. So medium layer clouds will be between 58 and 59. And above that will be high cloud, and high cloud we generally give 75, 7,500 meters. Okay. Are you all seeing that? Okay. ये मैं आपको थोड़ा correction करके देती हूँ, ये थोड़ा गलत लिखा है इन लोगों ने. So I'll just do this correction. मैम जैसे 8 वाले ग्रुप में मेरे पास 1 ऑक्टा एसटी है, 3 ऑक्टा एससी है और 3 ऑक्टा एसी है. हाँ. तो शुरू के 2 क्लाउड ही दूंगा या तीनों दूंगा? जैसे एक एसटी और 3 एससी. एसटी 3 एससी, एसी नहीं देंगे. एसी हैज टू बी 5 ऑक्टा. व्हाई? एसी 5 होगा तो भी तो ही देंगे. 5 तो होंगे. अभी आपका कैसा है, 1 ऑक्टा और 3 ऑक्टा होने के बाद आपको एसी 5 ऑक्टा देना पड़ेगा, बिकॉज एसी ने ये दोनों को ऊपर पे कवर कर दिया होगा ना. देखो आप नीचे से व्यू देख रहे हो, नीचे से व्यू देख रहे हो तो आपको एसटी 1 ऑक्टा दिख रहा है, उसके ऊपर में आपका जो है एससी दिखाई दे रहा है, तो 1 ऑक्टा उधर कवर हो गया, ये 3 ऑक्टा दिखाई दे रहा है. तो आपने ये क्या करना है कि एस्टिमेट कर रहे हो ना, तो आप अभी एससी और एसटी का कितना दे दिया, 3 ऑक्टा दोगे, तो इंडिविजुअल है 1 ऑक्टा एंड 3 ऑक्टा. अच्छा, अभी एसी उसके ऊपर है, 2 ऑक्टा और कवर करेगा ना, तो वो 5 ऑक्टा बन जाएगा. जब आप दोगे, जब आप टोटल दोगे तभी इसको पूरा मिलाकर कितना हो जाता है, 3 + 2 5 ऑक्टा होता है. आपका n is become 5, बट आपका इंडिविजुअल क्लाउड जो है उसके ऊपर भी है ना, तो आप 5 ऑक्टा एसी दोगे. और अगर आपको लगता है इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो 1 and 3 देके छोड़ सकते. हाँ, वही चीज, मतलब कि यदि सिग्निफिकेंट नहीं है तो 1 and 3 देके ही छोड़ेंगे ना. yes. जब तक 5 नहीं होगा तब तक नहीं कर देंगे. नहीं करना. तो वो अगेन एस्टिमेशन अप टू यू एंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बिकॉज एसी अलोन विल नॉट हैव मच ऑफ इफेक्ट. ओके, अनलेस द सीबी इज नॉट देयर. यस सर. तो आपका रेन बेयरिंग क्लाउड्स नहीं है ना. सी जनरली एसटी कब आता है पता है, जब व्हेन देयर इज अबाउट टू रेन. आपका एससी आएगा ज्यादा, सीयू आएगा. हम एससी सीयू 6 देते हैं ना, और एससी सीयू 5 देते हैं. एसटी कब आएगा, जब आपका 7 बैड वेदर आता है. आपको बिना उसके तो एसटी और एससी का तो कॉम्बिनेशन कभी आपको दिखेगा ही नहीं, अनलेस इट्स नॉट अ बैड वेदर. सो दैट टाइम एसी 5 एसी एस 4 रहेगा ना वो, तो क्योंकि इट्स अ बैड वेदर. सी एसटी आया है, इसका मतलब है बैड वेदर. बैड वेदर का मतलब रेन और ड्रिजल तो हो रहा है. Got it? Yes, ma'am. See, you understand mythologically also. It is not that some arbitrary cloud will come just like that. If ST, अगर ST है इसका मतलब बैड वेदर है, और बैड वेदर है इसका मतलब आपका क्लाउड जो है 6 ऑक्टा 7 ऑक्टा होगा, और उस वक्त में आपका ACAS होगा. एसी अकेले में आपको कहां से बैड वेदर आता है? Do you get me? एसी अकेले में तो होगा ही नहीं बैड वेदर. हाँ, तो इसीलिए तो मतलब क्या है, अगर आपने ST आया है 1 ऑक्टा का, तो मतलब आपका जो टोटल क्लाउड कवर होगा 6 to 7 ऑक्टा होगा. नहीं, वो तो मैंने सिचुएशन बताया था 135 के लिए. हाँ, नहीं, देखो सिचुएशन ऐसा है, 135 के लिए ऐसा है, आप SC 1 ऑक्टा, SC 1 ऑक्टा, CU 3 ऑक्टा लेके AC छोड़ सकते हो. SC CU AC का कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल इन द एटमॉस्फेयर, बट ST के साथ में इट इज नॉट पॉसिबल. अगर ST है इसका मतलब है बैड वेदर है, और बैड वेदर है तो आपको ACAS 4 होगा, और आपका टोटल क्लाउड कवर 6 to 7 ऑक्टा होगा. मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि SC CU AS और AC ये हो सकता है. मैम स्पीड से भी बता सकते हैं कि ST SC के डिफरेंस कौन सा ST है कौन सा SC है. जैसे नॉर्मली यहाँ पे हाई स्पीड क्लाउड होते हैं, वो ST नीचे भी होते हैं लेकिन ST देते हैं कई बार.
कई बार देखो कैसा है, इट ऑल डिपेंड्स कि जब अगर मूविंग क्लाउड होता है ना, मूविंग फास्ट मूविंग क्लाउड, तो हम एसटी देते हैं। ओके, बट अभी एसटी बिना पर बारिश उस का एसटी को 7 तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि 7 वो नहीं दे सकते। बैड वेदर तो सिर्फ यस, ब्रेनिंग वगैरह हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है तभी होता है। तो तभी 7 होता है। ओके, तभी ही 7 होता है, नहीं तो उसके बाद बिना उसके आपका 7 नहीं दे सकते। 6 देना है क्या? 6 दे। Stratus is more or less a continuous sheet, but it is fractures, मतलब थोड़ा-थोड़ा bad weather, but no stratofractures of bad weather. Stratofractures का bad weather नहीं है तो आप 6 दो, मतलब वो व्हाइट कलर में रहता है, ब्लैक कलर नहीं रहता है। It's a kind of light white color one with kind of filaments which are just flowing. तो bad weather आया तो आपका 7 है, fair weather है तो 6 है। वो तो मैम हमारे मानसून में होता है। हाँ, तो मानसून नहीं होगा तो बट देखो हर एक के वी हैव टू देना। एसटी तो नॉर्मली मानसून में है। मानसून में होता है। एंड लास्ट ग्रुप है 9 SP। दिस इज अ स्पेशल ग्रुप। ये स्पेशल ग्रुप कभी कभी रिपोर्ट होता है जहां हेल हुआ, बट हेल एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ तो ये देना है। सो दिस 9 SP ग्रुप जो है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि दिस यू प्लीज अंडरस्टैंड, 9 SP ग्रुप इज नॉट अ कॉमन फिनोमिना, it is only a special phenomena when there is a hailstorm or squall at the time of observation, और इसके लिए and if it is not at the time of observation that cannot be include, यहाँ पे include नहीं होता है, वो plain language में जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ 9 SP वाला। ये देखिए आपका है, this is actually a special phenomena where supplementary weather codes of 1955 का है। ठीक है, 1955 का पुराना इसमें ये हुआ करता था, बट अभी हम लोग ये नहीं देते हैं। ओके, यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन इनटू द लास्ट पेजेस। इट इज पेज नंबर 43, पेज नंबर 4। अच्छा, इसके बीच में 58 एंड 59 छूट गया है। सी 58 एंड 59 इज प्रेशर चेंज फ्रॉम टुडे यस्टरडे टू टुडे। अगर हमारा प्रेशर चेंज पॉजिटिव है तो हम क्या देंगे 58, and if the pressure change is negative then we'll take 59. Okay, today minus yesterday. प्रेशर चेंज 0 होगा तब भी 58000 आएगा ना? 58000 say 58 0 is positive number, anything negative 0.1 से minus 0.1 से आपको 59 देना है। ठीक है ना, that is 58 and 59। ये SP का ग्रुप है जो है पेज नंबर 43। तो तभी क्या देंगे, ये देखो कोड 00 to 010 दिया है, 900 GQ। ये वाला जो है जनरली आता नहीं है। ओके, बिकॉज दिस वेदर फिनोमेना वाज अ वेरी ओल्ड वन, बट टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, वन इज स्क्वाल GQ का, एंड सेकंड इज द हेल स्टॉर्म। हेल एंड स्क्वाल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी दूसरे के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, as far as IMD is concerned. Okay. Do you get me? Yes, ma'am. जब 30 mm से ज्यादा बारिश हो जाए विद इन 12 आवर्स तब भी 9 to 8 ग्रुप रिपोर्ट करते हैं। नहीं, 30 mm से 30 mm is just 3 centimeters है। 3 centimeters का 9 SP क्यों आएगा? आपका इधर पे आएगा सेक्शन 5, ये आएगा ना। यहाँ पे रिपोर्ट किया है कई बार बेंगलोर में। क्या 3 सेंटीमीटर? लास्ट में ये 9 to 8 और 9 to 9 ग्रुप जो है ना, पेज नंबर 45। हाँ, 9 to 8 और 9 to 9 रेनफॉल अमाउंट 30 mm और विद इन 12 आवर्स 30 mm। अरे precipitation of 30 mm within 12 hours is just 3 centimeter. 3 centimeter is not even a heavy rainfall. ये आपको किसने सिखाया ये 585 ये वाला बैंगलोर में? मैम यहाँ पर रिपोर्ट करवाया है हमसे। कौन है वो जो करवाया है आपसे? ऐसा तो याद नहीं है मैम किसने वो। अरे तुम बैंगलोर में काम कर रहे हो, तुमको बैंगलोर में लोग याद है, मेरे को तो सारे बैंगलोर के लोग याद है। 5 साल हो गए मैं बाहर आके। आपको ये बात लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, पता नहीं किसने करवाया। नहीं, जो भी है, अभी तुम्हारा पीबी का इंचार्ज कौन है? अभी तो मैम चेतना मैम है। हाँ, चेतना, फिर ठीक है, मैं चेतना मैम से बात करती हूँ, क्योंकि क्या है 3 सेंटीमीटर्स इज नॉट ए हेवी रेन। हेवी रेन के लिए आता है
you first understand trace to 3 centimeters is light rain. 3 centimeters to 7 centimeters is moderate rain. 7 centimeters to 13 centimeters is heavy rain. And above 13 centimeters for 24 hours is above 13 centimeters for 24 hours is very extremely heavy rain. मैंने वहां काम किया है और आप ये वाला जो है 9 SPSP ग्रुप में 3 centimeters for 24 hours you can't do it because it is not special. 3 centimeters आपका heavy rainfall analysis जो आ जाता है heavy rainfall analysis में if it is going to be and actually a 9 SPSP group जो है ना it is an obsolete group. It is not reported these days because it is only 1955 का grouping में है. हमारा ये जो रखा हुआ है वो squall के लिए है और hail के लिए है. If it is a squall and a hail at the time of observation, that time only this will be used. Agar it is before the observation or before the observation, then it will be a plain language. The squall has happened with its diameter and the timing. Okay, 3 centimeters is 3 centimeters is even less than it's a light rain. Light rain ke liye, light rain in 24s cannot be reported. Extremely heavy rainfall of 24 centimeters and 25 centimeters hua na. That time also we have not reported because I was there in Bangalore when the 13 centimeters ka rainfall had occurred in over just about 4 hours, and the entire Bangalore was drowned. And I have issued so many क्या है उसमें weather क्या कहते हैं उसे हम लोग insurance claims. So I'll talk to Chetana madam because this is an obsolete group which is not actually included. On page number 45, something is written about this. Correct. That is what I'm trying to see. आपने इसका पहला first of all you go to index page में आप index page में SPSP group देखो. It is a supplement to weather code 1955. SPSP group क्या है? It's a special phenomena. It's a supplementary weather code. मतलब the weather phenomena has to be a special weather phenomena. 3 centimeter of rainfall is a normal phenomena. It is not special. Yes. Okay. Those days, this is 1955 से पहले 3 centimeters used to be a special. देखो ये क्या है? 928 RR. Amount of precipitation more than 30 mm within 12 hours. तो वो तभी जो था, it was really very significant amount. But yeah, now after the correction of the things, 3 centimeters is a light rain. 25.4 तक के लिए light rain है, 25.4 mm. और it should be 30 centimeter होना चाहिए. Then it is special. 30 mm. 30 mm का मतलब कितना हुआ? 3 centimeter हुआ ना? Yes. 3 centimeters is not a very heavy rain. It is light rain. 25.5 mm to 34.4 तक. It comes under 3 centimeter only. Rounding off में. Yes, ma'am. है ना? I'm sorry, 30.4. 30.5 है तो 31 होता है. Got it? Yes, ma'am. 31 also is 3 centimeters only. So 34 उसका चार्ट है ना आपके पास. So इसीलिए it's not special group. I'll tell to Chetana madam. Okay? और इसका अभी हम लास्ट ट्रेन में आते हैं 0. ये 555 सेक्शन जो होता है वो ओनली 3 UTC में जाता है. मैम बोलिए मैम हेलस्टॉर्म के लिए मैम जो स्पेशल ग्रुप है वो मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है. देखो SPSP में बताती हूँ. 9 में जो है 9 SPSP ग्रुप है ना. अब हेलस्टॉर्म आता है तो 9 में आपको बताती हूँ. 9 में ये आ जाएगा विंड एरिया एंड सी ट्रॉपिकल फिनोमेना. इसमें पहले बहुत से ग्रुप्स हुआ करते थे, गस्ट एंड अदर थिंग्स एंड ऑल. ओके, अभी ये सारे ग्रुप्स निकाल दिए हैं. 9 वाला जो ग्रुप है ना वो एक्चुअली इज बीन रिमूव. ये देखो यहाँ 2 बातें हैं. एक है 900 GQ. दैट मींस व्हाट? टाइम नियरेस्ट टू द intensity of the phenomena which is not persist more than half an hour. So 9 SPS, capital SPSP is a phenomena, special phenomena, and small SPSP is special phenomena in detail. Okay, 01 is time of commencement of the phenomena nearest to the quarter hour, and 02 matlab time of the ending of the phenomena nearest to the quarter hour.
मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपका टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड टाइम ऑफ एंडिंग, अगर आपका टाइम, अगर क्वार्टर ऑफ द आवर का मतलब होता है आपका 8:30 का ऑब्जर्वेशन और 8:15 टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फिनोमेना नियर द क्वार्टर ऑफ आवर, अगर आपका 8:15 को ये शुरू हुआ था, आप 9:01 दोगे। ओके, 9:02 कब दोगे, 00 कब दोगे, इंटेंसिटी ऑफ द फिनोमेना डिड नॉट परसिस्ट मोर देन हाफ एन आवर, मतलब कभी तो भी हुआ था और वो एक 15-20 मिनट के लिए था, तो तभी आप 9:00 दोगे। 01 कब दोगे, फिनोमेना 3 UTC का आपका ऑब्जर्वेशन है, 8:15 को शुरू हुआ, 8:15 को शुरू हुआ, तो you'll give 01। ओके, और अगर 02 कब दोगे, अगर 8:15 को वो खत्म हो गया, it started but it finished quarter hour before the commencement of the observation। ओके, GQ जो होता है, टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ड्यूरेशन ऑफ द फिनोमेना लास्टेड मोर देन हाफ आवर, मतलब क्या है, वो फिनोमेना लास्ट 3 आवर्स में हुआ था जो आधे घंटे से ज्यादा चला था। ओके, स्क्वाल जो है 1 मिनट का ऑब्जर्वेशन है, स्क्वाल इज 1 मिनट। इफ दी सस्टेनिंग, ये स्क्वाल का डेफिनेशन जो है मैं आपको थंडरस्टॉर्म के साथ में बताऊंगा। ओके, वो 1 मिनट का होता है। सैंडस्टॉर्म एंड डस्टस्टॉर्म्स हुए, आपका आधा घंटे का सैंडस्टॉर्म डस्टस्टॉर्म तो होता नहीं है, अगर कभी हुआ फॉर सम रीजन तो 9:04 आएगा। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट। ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट जो है वो 01, 00, 01, 02, 03, 04, 05। ठीक है, यस मैम। ओके, नाउ टाइम एंडिंग 10, टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ स्क्वाल इज 10। ठीक है, टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ स्क्वाल, तो ये जो है हर एक के लिए अलग अलग में दिया गया है। अगर आपका 05 दे रहे हो, टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ फॉग, सो दीज आर दी स्पेशल फिनोमेना विच आर हैपनिंग, और उसके लिए 0, ये जो फिगर्स दिया है वो आपको उस वक्त में यू हैव टू गो हियर एंड चेक एंड राइट इफ इट इज हैपनिंग एट द टाइम, एंड ये विंटर में तो होगा नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिविंग फॉग इन दी 7th ग्रुप। यस मैम। सो आपको 9th ग्रुप तो नहीं आएगा ना फिर से you are not repeating everything। okay, so repetition of the same weather, thunder showers, rain, everything is you are already giving 7 WW, W1, W2। what you can't report there, what you can't report in that 9th का इसमें only you cannot report is the hail and squall। got it? WW, W1, W2 में आप क्या नहीं रिपोर्ट कर सकते, hail and squall। ठीक है, हेल एंड स्क्वाल के लिए आपको ये ग्रुप इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी किसी के लिए भी ये ग्रुप इस्तेमाल नहीं करना है। मैम इसमें जो N9 वाले ग्रुप में जो स्मॉल SP स्पेशल फिनोमेना, इसमें क्या देना होगा हमें? फिनोमेना है दैट इज द हेल स्टॉर्म, और हेल स्टॉर्म का फिनोमेना मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हेल का फिनोमेना एंड इसका, एक सेकेंड, आई विल जस्ट टेल यू। Ma'am, and this is same for squall. Yeah, same for squall, because squall, see, देखो क्या, squall and hail will not happen at the time of observation ना। यहाँ पे मैम कभी कभार रिपोर्ट होता है, फिर हम उसका मैम स्क्वाल रिपोर्ट बनाते हैं और मैम डायमीटर वगैरह पूछते हैं। करेक्ट, स्क्वाल के लिए आपको MMR में भी तो दिया गया है, स्क्वाल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है ना। प्लेन वर्ड में हमें एक रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, कमेंसमेंट का टाइम कितना विंड गया था, इसीलिए ही Indirect wind speed किया था, जब नाइट maximum wind speed किया था। correct, see, because you are giving it a plain language, that is why this 9 SPSP group is more and more important for 2 things, that is squall and second is the hailstorm। this one। and squall कभी रिपोर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपका स्क्वाल हुआ था शाम के 4:15 पर, ठीक है, आपने वो रिकॉर्ड किया है, तो आपका 5:30 का, दैट इज 12 UTC का ऑब्जर्वेशन में आपका 9 ग्रुप भी जाएगा और प्लेन लैंग्वेज भी जाएगा, Plain language। ठीक है ना। तो ये 9, हाँ, तो दोनों में वो जाना चाहिए। फॉर सपोज हेल हुआ 3 बजे के करीब, तो आपका हेल स्टॉर्म हुआ अराउंड मे बी 2 बजे, तो आपका 9 UTC में इट विल गो। ठीक है, सो आफ्टर द इवेंट और एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर वो हो रहा हो, दैट टाइम यू हैव टू report this 9 SPSP group। 9 SPSP group is exclusively for 2 weather special events, that is squall and hail, जो आपके present and past weather में कहीं पे भी reflect नहीं होता है। आपका rain and everything present and past weather में reflect होता है, कंसा 7 WW, W1, W2।
तो आपका अगर 3 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, इट इज जस्ट अ मॉडरेट रेन एंड विच यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द 7th ग्रुप, दैट इज W1 W2, करेक्ट ना? W1 में रेन एंड रिजल्ट 6-5 दे रहे हो ना? जो ग्रुप आप नहीं दे सकते हैं उसी को आपको इधर रिपोर्ट करना है। एंड इसमें आई विल टेल यू एग्जैक्टली फॉर स्क्वाल के लिए कौन सा है। थंडरस्टॉर्म, मैम बोलिए। मैम 30 mm में तो नॉर्मली दे देते हैं, 6030 ऑब्लिक कर रिपोर्ट देते हैं। करते हैं सिनॉप में। गस्टी विंड सिनॉप में नहीं आता, बिकॉज गस्टीनेस इज एक्चुअली अ फोरकास्ट ना। यस मैम, मेटार में अभी आप बताओ मेटार, देखो नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज ए सिनॉप, इट इज नॉट ए मेटार। मेटार जो देते हैं हम एविएशन के लेते हैं, जहां पे गस्टीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एयरक्राफ्ट बिकॉज यू आर ऑन द एयरबेस एंड आपका एयर स्ट्रिप है। बट वेयर सिनॉप में इट इज अ जनरल पैरामीटर्स विच आर टू बी रिपोर्टेड। अगर आप बिल्डिंग में खड़े हैं और आपका गस्टिंग हो रहा है कितना 5 to 10 नॉट्स, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? ओनली आपका ब्रीज ज्यादा रहेगा। बट एयर स्ट्रिप पे वो जो गस्टिंग है 25 to 30, ओके, दैट विल एंटर, वो पूरा एयरक्राफ्ट जो है अपना रनवे से बाजू में हो जाएगा, करेक्ट? हाँ, तो विजिबिलिटी फॉर एग्जांपल एरोड्रोम वार्निंग्स में, अच्छा विजिबिलिटी हम लोग विजिबिलिटी क्या देते हैं या 95-96, बट विजिबिलिटी 100 meters, 200 meters, 300 meters हैज अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन दी एयर। हाँ, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाना है। व्हाट इज विजिबिलिटी? HVV, VV is the horizontal visibility from the place where you are standing, okay, but in aviation visibility is very important, ठीक है? मैं आपको ना ये 9 SPSP का ग्रुप का जो ये जो है ना, कौन सा है वो, गस्ट, स्क्वाल एंड इसका जो, हाँ वो मैं आपको स्क्वाल एंड हेलस्टॉर्म, दीज आर ओनली 3। गस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म तो देखो भाई, डस्ट स्टॉर्म यू आर ऑलरेडी रिपोर्टिंग ना। डस्ट स्टॉर्म के लिए फिगर है ना आपके पास, प्रेजेंट वेदर एंड पास्ट वेदर। सी प्रेजेंट वेदर एंड पास्ट वेदर में आपके पास ऑलरेडी उसका फिगर्स है ना डस्ट स्टॉर्म का। देखो कोड फिगर में जाओ, कोड फिगर में हेल स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म जो है थंडर के साथ में दिया हुआ है ना। यस मैम, 09 एंड व्हाट अबाउट 30 क्या है? सैंडस्टॉर्म है ना। अरे भाई 09 नहीं है वो, 09 इज सैंडस्टॉर्म बियॉन्ड द स्टेशन। WW 30 to 39 30 to 39 जो है आपका ये 30 to 39। हाँ ठीक है, 30 to 39 is what? It is sandstorm only. So see what is not available between 00 to 99. आपका 00 to 99 क्या अवेलेबल नहीं है? आपका अवेलेबल नहीं है वो है हेल स्टॉर्म एंड स्क्वाली वेदर। So that is why you have to report it in 9 SPSP, ठीक है? Otherwise rest everything you are giving it in present and past weather ना। और आपका पास्ट वेदर में क्या है? डस्ट स्टॉर्म इज 3 इज देयर ना, सैंडस्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म। मैम 27 में हेल लिखा है मैम, शावर ऑफ हेल। करेक्ट, 27 जो है प्रीसीडिंग आवर में दिया है, शावर और हेल व्हिच इज इन प्रीसीडिंग आवर। बट दिस द सेम थिंग व्हिच वी हैव टू स्पेंड कि एक प्रीसीडिंग आवर में है, दैट इज फ्रॉम 7:30 to 8:15 और 4:30 to 4:15, और ये उससे पहले हुआ होगा तो क्या करोगे? पास्ट वेदर में, पास्ट वेदर में आपके पास है क्या? पास्ट वेदर में आपके पास है? नहीं है, नहीं। इसीलिए आपको वो 9 SPSP ग्रुप में देना पड़ता है। वो है ओनली हेल स्टॉर्म एंड सेकेंड इज स्क्वाल। स्क्वाल इज ए sudden increase in wind speed where it crosses 3 stages in the buffered scale, on the buffered scale, or from 8 meters per second to 11 meters per second. If that is what is 11 meters per second is the wind speed. Okay, so that I will teach you in synoptic with thunderstorms. Okay, so that is not available and therefore this 9 SPSP group comes. In this 9 SPSP group I will tell you the wind में ये कौन सा जगह पे आता है, आपको यहाँ पे देना पड़ता है कि भाई where what number you have to use for this one. I will just tell you on next in
when I come back, I'll start with the. मैम बोलिए। मैम वो 9 ग्रुप लास्ट 3 आवर्स में कभी भी हुआ हो तो रिपोर्ट होगा। लाइक अगर मैं 8:30 को रिपोर्ट कर रही हूँ तो 5:30 से 8:30 को कभी भी 8:30 से 8:20 के 7:30 के बीच में, मतलब 5:30 से 7:30 के बीच में अगर वो होता है तो आप 9 SPSP पे दोगे, नहीं तो वो प्रीसीडिंग आवर में आ जाएगा ना आपका W1 W2। ओके एंड WW प्रीसीडिंग आवर में आता है। जब आपका W1 W2 में देखो, W1 और W2 में क्या फिनोमेना नहीं है। W1 W2 में आपके पास स्क्वॉल का फिनोमेना नहीं है और ये हेल का फिनोमेना नहीं है। और सुबह 8:30 बजे को आपका ये होता नहीं है, ये जनरली होता है 5:30 बजे को, मतलब 2 से 5 बजे के बीच में ये वेदर फिनोमेना होता है 2 से 5 बजे के बीच में ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, और ये सब जगह नहीं होता है, इन सदर्न इंडिया होता है या तो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज होता है। तो इसीलिए अब ये किसका है भाई, इतना आवाज आ रहा है, somebody's mic is on. Okay, right? So now the last figure what I am supposed to teach you here is VV. What is that? VV is visibility. IRIX H VV. VV is the horizontal visibility. ये horizontal visibility जो है आपका फिगर है, you please go to VV is code number 25, page number 28. And still I have to tell you one thing, वो 9 SPSP group का कहाँ आता है, because I'll just check that and tell you, because मुझे भी इतना by heart नहीं है। I know कि भाई ये यहाँ रिपोर्ट होता है, बट कौन से पेज में ये फिगर है मैं इतने याद नहीं रखती, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे भी काम होते हैं। ओके, वीवी का एवरेज टेबल जो है वो है पेज नंबर 28। ये है सरफेस ऑब्जर्वेटरी के लिए, बट आप लोगों का जो वेरी थिक फॉग वगैरह आता है उसके लिए जो आ जाता है दैट इज दी अदर विजिबिलिटी। ये देखो यहाँ पे दिस इज फॉर द सरफेस, but when we are giving it for aviation we give it in meters, 100 meters, 200 meters, 300 meters, 500 meters, like that. Am I right? 0500 is 500 meters, 5000 is 5 kilometers, right? So that is it. VV visibility is in 4 figures for a meta, but whereas visibility in surface observation is 2 figures, which is from 90 to 99. Okay, 90 is if the object is visible within 50 meters, and this is only for surface coding. Okay, so generally we give 95 and 96, that object is visible at 2000 but not at 4000, and 96 is given at 4000 not at 10000. अभी अगर आपने मुझे यहाँ पे 92 और 93 का फिगर दिया और यहाँ IX में कुछ भी नहीं दिया, IX में you said that it is 1 दोगे या 2 दोगे IX? 1 मैडम वेदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेदर होगा, that means आपका WW भी होना चाहिए। यस मैम 2 मैम। अरे यार 1 है, मैम 2 फॉग होता है फिर। अरे देखो भाई 1 सी IRIX HW ना, देखो X का मतलब 1 is man and included, ठीक है। if it is included that is IX is included is 1, ठीक है। एंड VV आपका आ गया 92 93, देन उस वक्त में आपको क्या होना चाहिए 7 में? फॉग होना चाहिए। फॉग होना चाहिए मैम। हाँ, ये 1 है और आपका वहां पे 93 दिया है, तो आपका मिस्ट होना चाहिए, हेज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। इसमें 705। हाँ, सो अगर आपने यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ वेदर 7 का ग्रुप में कुछ तो होना चाहिए। आपका विजिबिलिटी जो है हेवी रेन चल रहा है तो भी आपका विजिबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड। अगर आपने IR दिया है और यहाँ रेनफॉल नहीं दिया तो भी गलत हो जाता है, मतलब यहाँ रेनफॉल का फिगर ना ये 6 RRR होना चाहिए ना। 6 RRR TR क्यों होता है? 6 RRR TR होता है भाई बिकॉज दैट इज दी since last observation, okay, and it is rounded off. Suppose 12.5 तो हम लोग क्या देंगे? 13 slash 13 ऑब्लिक, यस मैम। या अदरवाइज 12.4 हुआ तो आप क्या दोगे? 0.12 ऑब्लिक। हाँ, तो that means what? We are rounding it off, but
In 3 UTC, you will give exact amount of rainfall for 24 hours, including the point. 555 के बाद होता है। यस मैम। 00126। हाँ, 00126 whatever 0126 जो भी है with the point, okay? And Yes. one RT is what? Cumulative rainfall, seasonal Seasonal rainfall. Correct. Seasonal rainfall. Correct. Seasonal rainfall. That is, see, what are the seasons? January and February are one season. Winter. March, Winter. April, March, May April, May. is going to be one season. Then June 1st को आपका 1 RT 0 हो जाता है. And 1st of October को आपका फिर से RT 0 हो जाता है. 0 हो जाएगा। Okay. Second DQ. The 2 DQ जो है डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग स्क्वॉल, यहाँ पे आ गया देखो कोड नंबर 7. DQ क्या आया? डायरेक्शन ऑफ द स्क्वॉल, कोड नंबर 7. एक्चुअली इसी के लिए ही वो स्पेशल ग्रुप ना आजकल सब जगह पे ओमिट क्यों हो जाता है, बिकॉज सी DQ इज कोड नंबर 7 जो आ गया है इधर पे, ये देखो DQ इज व्हाट? सिंगल पॉइंट, whichever direction, 8 point of the compass. What is FQ? Maximum force in the buffered scale. Code number 11. Code number 11 में maximum in the buffered scale. देखो यहाँ क्या है? Code figure 6. Wind force is 6. ये buffered scale भी आपको I will share. 6, 7, 8, 9. अगर ये ऐसा आता है तो then only we will be wind force on buffered scale का ये कोड नंबर आ जाता है. And surface wind velocity का देखो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 17. Okay, 0 is calm, 1 is light, 2 is light breeze, 6 का फिगर जो है strong breeze, जहां पे ब्रांचेस हो जाता है. एंड 22 to 27 नॉट्स का विंड अगर हो रहा है तभी आप ये 5 after 555 in the morning time you will be including it here. 2 DQ, FQ, QQT. and QQT कहाँ है? Q and QT. ये देखो ये है कोड 21 एंड कोड 22. ओके, कोड 21 एंड कोड 22 यहाँ पे है. Here QT is very calm one, light one. देखो यहाँ 9 figures है. Line squall, gusty weather followed by succession of squalls. So this figure is given in the 555 group. Okay, and QT yeah, time of occurrence. कितना देर हुआ? 1 घंटा, 1 or 2 hours ago, 3 hours ago, 4 hours ago और more than 10 hours ago. ये 555 का ग्रुप में अगर आपका 24 hours में कभी भी हुआ था तो कितने घंटे पहले हुआ था? You get me here? देखो ये वाला ग्रुप है, इसीलिए ही 9 SPSP वाला ग्रुप नहीं रिपोर्ट होता है. 9 SPSP वाला ग्रुप only and only in the thing that when we want to inform immediately after the observation. ये क्योंकि क्या है, ये जो है वो 24 hours का है. सपोज आपका 2:30 या 2:45 को हुआ था, आपने 5:30 में रिपोर्ट किया, अगले दिन 3 UTC में ये 2 DQ, FQ, QQT ये जो है ये आएगा. Do you understand? Get me? Hello? Yes, बिना उस ग्रुप के, सो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए 30 mm का रेनफॉल के लिए आप ये ग्रुप नहीं रिपोर्ट कर सकते. एंड इट इज अ रॉन्ग स्टेशन प्रैक्टिस. आप किसी स्टेशन में हो रहा है तो आप बता दीजिए MTI में ऐसा पढ़ाया गया है. 9 SPSP small SPSP group is only and only reported for squall and hailstorm. हाँ, एंड वो आप कभी देखो, और स्क्वॉल के लिए 24 आवर्स होने के बाद में 3 UTC में आपका 555 के बाद में ये 2 का ग्रुप इंक्लूड होता है. ओके, अच्छा भाई कौन है भाई बात कर रहा है? मुझे उसका भी बात सुनना है क्या? मेरा कोई बात सुनने वाला है? मैं बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं सकती यार, मेरा तो गला खराब हो रहा है और मुझे बहुत सारा काम बाकी है. अच्छा अब ये हो गया. Am I okay with the entire surface inland coding? Ma'am, there are 5 sections. Where is section 4? Section 4 is missing. Oh, so sweet. You have finally asked me what is section 4 and why section 4 is missing. Section 4 कभी देते हैं? When will we give section 4? कोई मुझे बता सकता है when will we give section 4 and why is section 4 missing? मतलब इन लोगों ने ना ऐसे खा गए यार इन लोग 444.
यस मैम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सेक्शन 4 खा रहे, मतलब कैसा है ना, ये WMO वालों को बहुत भूख लग गई थी, तो उन्होंने क्या किया, 4 को अच्छा नहीं लगा और वो खा गए। Am I right? Yes. कोई कहा 4 अच्छा नहीं लगा। They did not like that 444. Number 4. Included in some other countries in other phenomena. Okay, वो मैं आपको बता, तो यहाँ तक था। पहला आपको ये वाला कोड ठीक है, have you understood this? So ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो वाला सेक्शन 3 में जो है वो करेक्शन करके देती हूँ। 444 का ग्रुप क्या हो जाता है, कहाँ खा गए, वो मैं बताती हूँ। कोई सोचने को तैयार है क्या, 444 का ग्रुप क्यों खा गए भाई ये लोग? हाँ, कुछ तो बताओ। 444 क्यों, इनको अच्छा नहीं लगा क्या? क्या करें भाई, आजकल लोग क्या काम करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने छोड़ दिया। No, ma'am, that will be in other countries, so not will be used in India. So maybe ना, देखो यहाँ मैं आपके सामने सर्च कर रही हूँ 444 ग्रुप इन वेदर कोडिंग, ठीक है। ये आता है फॉर ये जो 444 ग्रुप है ना, क्लाउड्स बिलो द माउंटेन स्टेशन, इसके लिए, जो हमारे यहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट नहीं, ठीक है। ये देखो, ये 444 ग्रुप का पूरा WMO का एक्सप्लेनेशन। गॉट इट? हेलो, यस मैम। आप लोग, आपको दिख रहा है ये सब? हाँ, तो ये आप लोग अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सिनॉप है, शिप है, एंड बुई डेटा है, एंड इफ दी 444 is always included for the cloud information below a particular station. That time that 444 is there, and we don't have so much of so many stations where it is there, and जो भी हमारा जो below station है उसके लिए वो जो cloud का weather group है वो बहुत हो जाता है, so that is why we do not use 444 in Indian subcontinent. जो hill stations like for example the extra tropical systems हैं और the stations above 40 degrees latitude है, उनके लिए वो ज्यादा relevant हो जाता है, so that is why 444 is used in those places. Now अभी हमारा है दूसरा एक शिप कोड। मैं एक बार शिप कोड आपको दिखा देती हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें और इसमें ज्यादा फर्क है नहीं, बट स्टिल ओके। इसमें IMTC मैं आपको शिप कोड भी एक बार दिखा दूं तो कम से कम आप लोगों का जो नेक्स्ट वीक में इनका काम चलने वाला है ना, तो वो तो शुरू हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल कम बैक एंड आई विल टेक इट, आई विल कंप्लीट योर क्लासेस। राइट, ये आ गया, ये देखियो, ये वेदर कोड फॉर शिप्स। वेदर शिप कोड में और इस कोड में फर्क क्या है? नाउ व्हाट इज द बिग डिफरेंस इन द शिप कोड एंड द नॉर्मल कोड? द शिप कोड में क्या हो जाता है, देखो ये आया ना, ये देखो इसमें 444 आ गया, खा गए WMO आ गया। अरे वाह 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 वाह, चलो भाई 444 मतलब 1 0 1 2 3 4 आ गया। ऐसे क्या 444 खा जाते हैं? देखो, डेटा ऑफ क्लाउड्स विद बेस बिलो स्टेशन लेवल, एंड दिस इज नॉट मेंट फॉर शिप्स, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर हिल स्टेशंस। ओके, देखो इसमें क्या है कि हमारा MI MJ यहाँ पे क्या आएगा, MI MJ BBXX, मतलब इट इज अ शिप कोड। और ये आ गया DDD, ये क्या आ जाता है, हर शिप का एक कॉल साइन होता है, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आ गया DDD। ओके, वो है अल्फा न्यूमेरिक। देन YYGGIW, ये हम लोगों को पता है, सेम थिंग एज दैट ऑफ द सरफेस कोड। ये 99 LA is the latitude at which it is there, and QC LO is the quadrant, and LO is the longitude. Okay, this we'll just go ahead
see here. Then IRIX HPV, the rest everything is the same. Okay, IRIX HPV. And 222 में आता है DSVS. 222 का आएगा, it is a section 2 for this one. DSVS is direction and velocity of the ship. Okay, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द शिप. ये हम लोग 222 का जैसे सेक्शन में जाएंगे वहां आपको मैं बताती हूँ. रेस्ट एवरीथिंग इज बीन रिटन हियर एंड यू पीपल आर प्रीटी गुड इनफ फॉर. इसके लिए ये देखो, नाउ दिस इज बीन रिटन इन द complete thing. MI, MJ will be BBXX. If it is a surface station, it will be AXX. Then it starts over there, and here DDD is going to be the call sign where it is alpha and numeric. ठीक है, alpha numeric. For example, SDH6F. This is going to be called as a call sign. और वो लोग कैसे बात करेंगे? This has been given as a standard international thing. S will be Seria Delta Hotel 6 number 6 Fort. जो लोग भी ना एयरपोर्ट्स पे काम करते होंगे, एटीसी वाले ऐसे ही बात करते हैं. हाँ चलो ठीक, तो ये लोग यही बात करते हैं. YYGGIW is going to be the wind instrument. YYGG and IW, which we all now know. Next क्या आता है? 99 LALAL. LALAL is the ship's latitude in degrees of tens. Okay, north and south. So it will be measured in degrees of terms and north or south of the equator. 99 is the indicator figure of the ship report. LALAL is a latitude which will be on the LA का जो है latitude, it is the latitude that is determined by the ship by their own 10th का degrees. And उसके बाद में 466 का मतलब क्या हो गया? 46 degrees 41 minutes. 41 minutes को आप कैसे डिवाइड करोगे? That conversion is been shown here. And this is ship का बात है, तो हम लोग इतना ज्यादा इसके ऊपर we do not take so much of concentration on this. You should know how it has been done. Suppose आपको बोला गया कि शिप डेटा दिया है, तो शिप को अगर वहां पे कोड करना है तो आपको सरफेस पे ये करना है. बट आजकल हमारा प्लॉटिंग है नहीं, इसलिए इट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर आपको वाइवा में कोई पूछा कि भाई ये क्या है, तो आपको वो देना पड़ेगा. और ये दिस विल कम एज द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस. ओके, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. देन QC, LO, QC is what? Location of the quadrant in the globe. जो ये लोकेशन है, देखो सपोज इफ इट इज इंडियन कॉन्टिनेंट में है, ईस्ट में, तो 1 आता है, ये क्वाड्रेंट आएगा. ये दिस इज ग्रीनविच मीन टाइम. इसका ये जो है वेस्ट लॉन्जिट्यूड और ईस्ट लॉन्जिट्यूड. दिस पर्टिकुलर फिगर इज फॉर व्हाट? ग्रीनविच मीन टाइम. तो वो उसका रेफरेंस है. उससे ईस्ट में रहेगा तो ईस्ट लॉन्जिट्यूड आएगा, वेस्ट में रहेगा तो वेस्ट का लॉन्जिट्यूड आएगा. एंड ये जो है इक्वेटर है, नॉर्दर्न इक्वेटर, सदर्न इक्वेटर. गॉट इट? देखो याद दिया ना, फॉर द पोजीशन ऑफ द इक्वेटर एंड ग्रीनविच ऑन द 180th मेरिडियन. ये लिखा है ना इधर पे? यस मैम. यस, चलो ठीक है. ये आ गया आपका LO इज व्हाट? लॉन्जिट्यूड ऑफ द डिग्रीज. ओके, कोडेड. अभी इसका मिनट्स को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 14 is the 142 degrees 55 minutes. इसका कोडिंग का आपको इधर पे दिया गया है रिमाइंडर. 142 degrees is coded at 55 minutes will be divided by 6 is equal to 9. The remainder is ignored. So the code will be 60 degrees 31 minutes 0605. So 142 को आप डिवाइड करो 6 से, कितना रिमाइंडर बचा है? 9. ओके, तो ये इस तरह से उनका डिवीजन होता है. दिस वी नीड नॉट रियली गेट सो इनटू इट बिकॉज मैं ऐसे इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी. ओके, एट द मोस्ट आई विल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का QC इज डैश. आप लोगों को 1 लिखना है. ठीक है, समझे? ओके, नाउ इट इज IRIX HPV NDDFF 1SN 2SN 3 4 5. यहाँ नाउ आई हैव टू टीच यू दिस 5A PPP. Why? Because 5A जो है ये आपको नॉर्मल सरफेस कोड में नहीं आता है. ओके, अच्छा, इसमें 3 क्यों नहीं आया? 3 PO 4 PPP. इसमें 3 PO रिपोर्ट करोगे क्या? No ma'am, ship is already in sea. Correct. So sea level will be reported only. Correct. Very nice. तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया. 5, ये देखो 5A मतलब क्या है? ये जो है बिकॉज शिप इज सेलिंग इन द सी, सो इट इज नॉट स्टैटिक, इट हैज मूव सर्टेन डिस्टेंस. सो 3 hours का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर टेंडेंसी इज शोन बाय 5A PPP. एंड ये जो है 5A PPP आपका जो आ गया इधर पे
कोड बुक में आप देख लीजिए, कोड बुक में है 5A PPP. A is given in code indicator 1. Code 1 indicator for constant pressure level, that is geopotentially reported. ये आ गया है आपका 5A. ओके, एंड ये A3 है 5A. वो शिप के कोड में आता है, सॉरी ये वेदर कोड में नहीं आएगा, ये शिप कोड का जो बुक है ना, शिप कोड के बुक में आपको 5A जो है आएगा. शिप कोड का अगर किसी के पास बुक है तो आप इसमें शिप कोड का बुक में देखिए, uh, 5A page number 29. 0 is rising then falling, 1 is rising and then steady, 2 is rising, 3 is falling and steady, 4 is steady, 5 is falling then rising, then 6 is falling and steady, 7 is falling and 8 is steady or rising. So this is what is 5 number please. 29 in ship code. Ship code का 29. Ship weather code का बुक आपको दिख रहा है, ये ship weather code. Can you see ship weather code? मैं ship weather code भी आप लोगों को शेयर, Ma'am, we don't have ship weather code book. वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है. I'll share the ship weather code page number 29. 5A triple P. Triple P जो है rising and falling in 3 digits in last 3 hours. Because ship is, अगर किसी ने पूछा तो यही आएगा. Why it is done? 5A triple P is, why is this has been reported in ship? इसका reason constantly moving. हाँ, because it is constantly moving and the earlier reading last 3 years 3 hours के पहले का reading will be at a different lat long and 3 hours के बाद में उसका it will be different lat long and the ship has a speed DSVS ना, direction and speed. Okay? Yes. Okay. इसका ये requirement यहाँ दिया गया है, देखिए. Barometer pressure tendency A. Okay? इसमें दिया गया है 7 WW W1 W2 which you know now it is weather, और 8 CL CMCH is the cloud reported. This is section 2. ये देखो इसके अंदर section 2 में DSVS दिया है. DS is the direction and VS is the speed of the ship in knots. Then यहाँ पे because it is sailing on the surface of the sea, we will give a sea water temperature. Okay. Sea surface temperature is also been mentioned. अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे 2 PW PW HW HW दिया है, D1 दिया है, D2 दिया है, इसका क्या मतलब हो गया? अब ये TW TW कोस्टल स्टेशन में क्यों नहीं आता? Direction of the wave. अरे भाई, आई एम आस्किंग यू, वन टेम्परेचर सी का सी सरफेस टेम्परेचर कोस्टल स्टेशन में क्यों नहीं आता है? मैम तो सरफेस का लेते हैं ना मैम, वहां पे फिर पीडब्ल्यू और एचडब्ल्यू तो दिया था ना मैम. सरफेस इज not on surface, coastal station are not on the surface. Surface of the, it is not inside the sea. Yes ma'am. Yes ma'am. Coastal ये आपको मैं सोचने के लिए लगा दे. Coastal station is not located in the sea. They are at the coast. They are the beach. It is on the beach. So they only give you the wave, and whereas ship is sailing on the sea. So it can take the sea surface temperature. Okay. Yes. अब यहाँ पे वहां पे का यहाँ पे का डिफरेंस, वहां पे क्या है? Wind wave is there and swell wave is there. But why wind wave is not there here? What is PW? अभी देखो कोड देखो. PW is the Period of wave. It's the period of wind wave. Period of wind wave in seconds. Correct. Okay. So wind wave and surface. यहाँ पे क्या है? When ship is there, there could be, when it is sailing inside or very much inside the sea or the deep seas, it can have
the both possibilities. See, when the ship starts, it starts from the coast, right, to and starts slowly and steadily going within the deep seas. So when it is there, it's sailing between the coast to certain miles, there is a possibility of wind wave. That is why PW, PW, and HW, HW, which only means the period of the wave and height of the wind wave. But the wind wave does not have a direction. When it is a direction is there, it is always a swell wave. When it is a direction of the swell wave, that time it has got two directions can be given, WW, W1, W2. The true direction of the swell wave is can be recorded here. That is direction, then the period and the height of the wave, and the second is period and height of the second swell wave. Okay, it is rounded off and coded. Okay, done. हुआ नहीं हुआ? अभी सरफेस ऑब्जर्वेशन में और इसमें क्या फर्क है? 5P एक तो प्रेशर टेंडेंसी, सी सरफेस टेम्परेचर, यस मैम, सी सरफेस एंड डायरेक्शन पीडब्ल्यू, वो तो कोस्टल स्टेशन में भी आएगा. यहाँ पे दीज आर द टू एक्स्ट्रा पैरामीटर्स एंड आल्सो द लोकेशन ऑफ द शिप. ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड द क्वाड्रेंट. Yes, quadrant is. Okay, so this is the only difference between the C का this one and speed and direction of the ship also. हाँ, तो वही ना. See, there are two. First of all, ship is not stationary; it is moving with a direction and speed. Second, because of its movement, there is a pressure tendency and variation from place 1 to place B, place A to place B. Second, third, as it is on the, it is sailing on the sea, so you have a sea surface temperature. Yes. So these are the three differences between a coastal station and a ship observation. Ship observation. Ship observation. Sometimes you also get buoy data. Buoy data is also something that buoys are actually placed in a particular location. They are left, and that data comes to the Earth station, and from there we are taking it. It will be noted as buoy data only. So this is also has been taken because it more or less very useful at the time of cyclones, because this data because the sea is a completely it is a complete no data region. Okay, so there is an understanding, so that marine meteorology one lectures will be happening there. They will teach you why they take the marine data and what are the GMDSS and other processes that are MOUs are there with these marine people, and how the ship data has been taken. So right now my job was only to tell you what is the coding effect. Okay, इसमें से एक रह गया है आप लोगों को 7 SPSP में. I have to tell you hail and squall ka code on which page it is there. Okay, this I will take it along with my because hail and squall are one of the special phenomena that happens with the thunderstorm, and the thunderstorm के क्लास के साथ मैं आपको वो दोनों भी बता दूंगी. क्योंकि थंडरस्टॉर्म जो है हमारा, थंडरस्टॉर्म का जो क्लाउड है सीबी क्लाउड, उस सीबी क्लाउड का इफेक्ट्स इज हेल एंड स्क्वॉल. दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. These are few of the parameters or few of the effects that the thunder cloud will produce. तो उस वक्त में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है? Am I okay? Okay, ma'am. अब बहुत सर खा लिया मैंने तुम लोगों का. बताओ. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम जैसे स्क्वॉल के लिए डीपीटी होता था, अपने यहाँ डीपीटी तो है नहीं, बट कभी कभी विंड स्पीड बढ़ जाती है. मतलब रेयरली ईयर में एक दो बार ऐसा, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? वो अभी आजकल ना उसका जो थोड़ा है वो डीपीटी को मेंटेन करना, उसका जो पार्ट्स मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो दीस पीपल आर नाउ व्हाट दे हैव कम अप इज विद AWSS, एंड AWS का जो विंड सेंसर्स है वो हर 15 मिनट का जो रिकॉर्डिंग है वो भेज देता है, एंड एवरी मिनट का वो एवरेज निकालता है. सो उसमें हम AWS के थ्रू वी आर गेटिंग दी स्क्वॉल डेटा. मैम व्हाट स्पीड वी शुड रिपोर्ट? कितना स्पीड पे? अगर देखो अभी आप इफ यू आर सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू आर देयर एट द स्टेशन, देन स्क्वॉल यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ बफर्ड स्केल. बफर्ड स्केल से ही आप कर सकते हो. ठीक है, मैंने कहा ना थंडरस्टॉर्म पढ़ाते समय मैं आपको बफर्ड स्केल भी पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें आपको स्क्वॉल का डेफिनेशन एंड हाउ टू रिकॉर्ड द स्क्वॉल बताऊंगी. बट आजकल डीपीटी नहीं है, डायनेमिक प्रेशर ट्यूब एनेमोग्राफ इज नॉट देयर.
why it is in a very few places, and उसका maintenance and उसका जो structure का requirement है बहुत huge है. So that is why the Dyne's pressure tube anemograph is no more existing. So the wind data is more or less is relied upon the AWSs, automatic weather stations, जो कि हर 15 मिनट का progressive आपको जो है data भेजता रहता है. It is 1 minute recording. Every minute it records and it gives us the data within 15 minutes. 15 minutes में उसका averaging किया जाता है. Okay. Actually हम कोडाईकनाल में DPT है but वो functional नहीं है. So हाँ, because उसके parts नहीं मिलते हैं, उसको maintenance बहुत मुश्किल है. Even बैंगलोर का भी तो बहुत मुश्किल से हम लोग पहले भी करते थे. I don't know whether it is working now or no, but it was very difficult to, because उसका वो parts very fine tuning चाहिए. And now we don't have mechanics anymore in IMD. The mechanics का जो post है वो तो खत्म ही हो गया है. So SA cannot take the observation and do the maintenance of and servicing of the things also. So that is why we have to be a little careful on this. Okay. So that is why now they are depending on the AWS data, automatic weather stations. मैम जैसे साइक्लोनिक, जैसे मेरा मछलीपट्टनम स्टेशन पे साइक्लोन आता है तो विंड का मतलब 44 नॉट से होता है. और वो तो आपके पास डॉपलर वेदर रडार है ना जी, तो बट सरफेस भी है ना मैम, तो सरफेस हाँ तो ठीक है. देखो, I'll tell you one thing. See, once you are having a Doppler weather radar, okay, the Doppler weather radar will take care, because वो तो already tracking शुरू कर देता है. Yes, yes. So see, then that time what it is, surface में हमारा जो भी recording है वो हो जाता है. See, why are we doing this? We are only and only doing this. Yes, ma'am. Okay, we are only and only doing this particular thing to collect the data with various sources. ठीक है. पहले surface observatories we used to play a very great role because there was no other technological advancements. Now what we are having Doppler weather radars, we are having satellites. Okay, we are having RSRW stations. So that is why wherever this Doppler weather radar is there, the Doppler weather radar is already tracking the cyclone from the time it is forming. Yes, ma'am. मैं तो फिर इसीलिए SWSR भी है हमारे पास. हाँ, और हाई विंड रिकॉर्ड भी है ना, HRSS क्या, HRW. हम लोग सिनॉप में उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं कर सकते. सिनॉप जो है ओनली सरफेस ऑब्जर्वेशन. जो आपको कोड दिया गया है उसमें आप कोड्स में कोई बदलाव नहीं कर सकते, बिकॉज दिस गोस इनटू दी GFS डेटा एंड इट गोस टू द ग्लोबल. सी, आपका जो भी सरफेस डेटा है AXX का, इसका जो 80 कॉलम का जो फिगर है ना, ये यूनिवर्सल है एंड इट इज बीन गवर्न बाय WM. सो यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग हियर. Why? Because आपका डेटा अगर आपने कुछ ज्यादा ऐड और कम करने की कोशिश की ना, तो दी सर्वर विल रिजेक्ट. So we cannot See, because it is all coded ना. See, 10 20 30 आपका स्पेसिंग के साथ में even one space कम में ज्यादा हुआ ना तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका डेटा. जैसे मैम सेक्शन 5 में 2 नंबर पे DQT है करके. अरे तो उसमें इस पर जस्ट जानना चाहता कि मतलब उसको क्यों यूज नहीं करते क्या उसको? अरे उसको जो है वो 555 जो है वो कहीं जाएगा ना, वो इंटरनेशनल के लिए नहीं, वो तो ओनली नेशनल विद इन द रीजन के लिए. देखो, आपको 0 1 2 3 का सबका एक्सप्लेनेशन दिया है ना, व्हाट गोज इंटरनेशनल एंड व्हाट गोज नेशनल, तो वो वहां कट ऑफ हो जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस ट्रांकुलेशन एंड देन डेटा जो का आपका क्वालिटी कंट्रोल है वो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द रीजनल वन, एंड वो रीजनल मॉडल्स में जो जाएगा वो हम इंडिया का रीजनल मॉडल लेंगे. और उसमें भी क्या है, इवन इफ इट इज साउथ इंडिया का होगा, फॉर एग्जांपल चेन्नई में अगर NWP चल रहा है और मीसो स्केल सिस्टम चल रहा है, इफ इट इज 3 किलोमीटर रेजोल्यूशन, 5 किलोमीटर रेजोल्यूशन, 15 किलोमीटर, तो हमारा रेजोल्यूशन चलता है ना. NWP मॉडल का ग्लोबल मॉडल जो है 12 किलोमीटर का रेजोल्यूशन है, पहले वो 25 था, 25 से अभी कम है 12 किलोमीटर. नाउ रीजनल मॉडल जो है, फॉर एग्जांपल NWP हम जो बैंगलोर में चलाते थे, इट हैड नेस्टेड ग्रिडिंग, तो इट वाज 3 किलोमीटर मॉडल एंड 15 किलोमीटर मॉडल. सो 15 किलोमीटर का भी इंजेस्ट होता था 3 किलोमीटर, बिकॉज इफ इट इज 3 किलोमीटर द रेजोल्यूशन इज हाई. व्हेन द रेजोल्यूशन इज हाई यू कैन अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर हाउ मच ऑफ थंडर एक्टिविटी कैन हैपन एंड व्हाट इज द सिवियरिटी इन द वेदर. So ये जो है नेक्स्ट जनरेशन ना, so नेक्स्ट जनरेशन के बेस इज द सरफेस ऑब्जर्वेशन. Okay, then why, that is why your accuracy in the observation has to be there, otherwise international scenario में आपका डेटा रिजेक्ट हो जाता है. So you got to be very careful while doing this surface observation, any observation for that matter. Okay, you should be careful. You cannot just leave the balloon and sleep. No, that is wrong. You have to be attentive and see there कि भाई आपका 10 मिनट का 15 मिनट का हुआ कि नहीं हुआ. So you have to keep checking the data.
Okay, that data only is getting ingested into the NWP. तो वो NWP में डालने के लिए आपका जो होता है, इसलिए डॉप्लर वेदर रडार का डेटा भी इंजेस्ट होता है, सैटेलाइट डेटा भी इंजेस्ट होता है. तो ये सब डेटा जब एक्यूमुलेट होके इंजेस्ट होगा तो तभी ही तो आपके मॉडल्स करेक्ट आउटपुट देंगे. यानी NWP किधर है, मतलब कहाँ होता है ये? कहाँ होता है? अच्छा, ये NWP का जो सर्वर्स है वो आपके NWP के क्लास में वो सिखाया जाएगा. बट एज फॉर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू द रन इज डन इन दिल्ली. हेडक्वार्टर्स में होता है. दिल्ली में होता है और दिल्ली में होता है. दिल्ली में होता है. एंड आल्सो द रीजनल मॉडल्स के लिए चेन्नई एंड अदर रीजन्स ना, मुंबई एंड कोलकाता एंड दे आर आल्सो रनिंग देयर मॉडल्स देयर फॉर विद इन देयर रीजन. ओके, so I think and I wish you all a very happy weekend. सभी को गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू मैम, सेम टू यू. एंड थैंक यू, सेम टू यू. हम हमारे देश की सेवा कर रहे हैं. तुम्हारे बॉन्ड्स बेच रहे हैं तो हुआ क्या? कौन है कार्तिक जी? किसका बॉन्ड बेच रहे हो? मैं नहीं बेच रहा हूँ, कोई और बोल रहा है. अच्छा, कोई और ही बोल रहा है. कौन से बॉन्ड्स बेच रहे हो? आप सभी को गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you so much, and I'll resume my classes after 2nd of February. Okay, have a great week. मैं आपको एक हफ्ता बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी. नो मैम, आपकी क्लास भी बहुत अच्छी लगती है, इंटरेक्टिव लगती है. बाकी तो बोरिंग चल रही है, मुझे समझ में भी नहीं आता. बाकी क्लास में थोड़ा समझ में भी कम आता है. अरे कोई बात नहीं, देखो कैसा हर एक को पढ़ाने का एक अपना अपना स्टाइल होता है. हाँ मैम, समझ में बहुत कम आता है बाकी क्लास. कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. आप लोगों के सभी की विशेष ऐसे मेरे साथ रहे तब तक. है, मैं आप सबको सिखाते सिखाते रिटायर हो जाऊं. आई विल आल्सो फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. दिस इज माय मेडल दैट आई गेट एंड सैटिस्फैक्शन. सो चलो, हैव अ ग्रेट वीक अहेड. बाय बाय. थैंक यू मैम. गाना सुन रहा है भाई आस्की टू का यार. अभी और क्लास होंगे कि हो गया खत्म भाई? लोग सब भाग गए. खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया. कब तक क्लास करोगे भाई, कब तक क्लास करोगे? इनकी थी तो 2 घंटे कर भी लिए भाई, नहीं तो और किसी की रहती तो आधे घंटे में खत्म हो जाता भाई. मंडे को एनर्जी लाती कहाँ से, लगातार 2 घंटे बोल देती है. मंडे को है क्या क्लास? बोली हम लोग बैठे सुने यही 2 घंटे, वो भी बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात. 2 घंटे कोई और लेता तो अभी तक ले सो जाते सब. भाई मंडे को है क्या? नो, इट इज सीएच. हाँ, छुट्टी है. 26 तारीख सब जगह सीएच है भाई. वो तो रहेगा ही. यार छुट्टी, परसों छुट्टी, 3 दिन लगातार बैक टू बैक. नो ब्रो, जस्ट नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे. हाँ ट्यूसडे. चलो ट्यूसडे.